Hello guys, welcome back to my channel. This is Demi here and today I am going to discuss some vocabulary words with you which will help you to improve your speaking as well as your writing skills in IELTS. Guys, आज मैं जो words discuss करने जा रही हूँ वो basically वो वाले words हैं जिनके आगे हम very लगा देते हैं ताकि हम अपने emotions को और भी strongly जो है वो present कर पाएँ. For example, very scared, very shy, very serious, etc. etc. तो आज मैं इन्हीं के कुछ सिनोनिम्स और वोकैबुलरी वर्ड्स लेकर आई हूँ क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत बड़ा समुद्र है. उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं और अगर हम इनको यूज़ करेंगे तभी हमें वोकैबुलरी पार्ट के अंदर अच्छे बैंड स्कोर होंगे. आई होप जो वर्ड्स आज मैं लेकर आई हूँ वो आपको बहुत पसंद आएंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. So let's start with our first word which is very scared and the synonyms for very scared are petrified, terrified, afraid, frightened. For example, I am frightened from the animals, specifically dog. So whenever I see a dog in front of me, I usually take U-turn. आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो कि मुझे एनिमल से बहुत डर लगता है और जब भी मैं डॉग्स को अपने सामने देखता हूँ तो मैं वहीं से मुड़ जाता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी स्केयर्ड यू कैन यूज़ दोज वर्ड्स. आई एम पेट्रीफाइड, आई एम टेरिफाइड, अफ्रेड और फ्राइटेंड. द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी सीरियस एंड द सिनोनिम्स फॉर वेरी सीरियस आर ग्रेव, अर्नेस्ट, सेवियर, थ्रेटनिंग. ये भी बहुत आसान वर्ड्स हैं जिन्हें आप वेरी सीरियस की जगह पर यूज़ कर सकते हो और याद करने में भी काफ़ी आसान है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी मीन एंड द वोकैबुलरी वर्ड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी मीन आर क्रूअल, सेल्फिश, एरोगेंट, सेल्फ सेंटर्ड. Here I'm going to present an example. For example, Rajesh is a self-centered human being. He neither thinks about his family nor friends but only of himself. राजेश जो है वो बहुत ही मीन इंसान है, बहुत सेल्फिश इंसान है. वो ना तो फैमिली के बारे में सोचता है ना फ्रेंड्स के बारे में वो सोचता है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के बारे में. The next word is very slow. If you want to explain a personality of a person who is very lazy or slow, you can use those words. Instead of saying that the person is very slow, you can use sluggish, snail-like, tortoise-like, leaden-footed. For example, रीमा इज़ अ स्लगिश पर्सन. शी नेवर डज हर वर्क ऑन टाइम. रीमा जो है बहुत ही स्लो लड़की है, वो बहुत लेजी लड़की है, वो कभी भी अपना काम जो है टाइम पे नहीं करती. रीमा इज़ अ लेडन फुटेड पर्सन. Rima is a tortoise-like person. You can use those words instead of saying very slow. These are far better words than very slow. Very cute. If you want to praise a person who is very cute, you can say adorable, charming, dainty, pretty. Oh, look at that girl. Isn't she charming? I think that is so good to speak instead of saying very cute. The next word is very hungry. Instead of saying very hungry, you can use the words famished or starving. Example के तौर पे, oh, I am starving. Can you please provide me some food? The next words are very shy. And the synonyms for very shy are timid, bashful, reserved. I think Sia is a reserved girl. That is the reason she never explains her feelings in front of everyone. मुझे लगता है कि सिया जो है बहुत ही शर्मीली और रिजर्व्ड किस्म की लड़की है, इसी वजह से वो हर एक के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं करती है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी टाइट एंड द सिनोनिम्स आर कॉन्स्ट्रिक्टेड, नैरो, क्लोज फिटिंग, कॉम्पैक्ट. और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेरी वाइड और जो इसके सिनोनिम्स हैं वो हैं एक्सटेंसिव, वास्ट, ब्रॉड, एक्सपेंसिव. फॉर एग्जाम्पल, द opportunities for jobs in the field of tourism is broad nowadays, so she thought of pursuing her career in tourism. The next word is very heavy. If you want to explain the weight of a thing, that it was very heavy, you can use the words weighty, leaden, massive, ponderous, hefty. For example, that bag was weighty. The bag was so weighty that my shoulders are aching now. वो बैग इतना हैवी था कि अब मेरे शोल्डर्स जो हैं वो दुख रहे हैं.
Next word is very evil. For example, you can use the words wicked, sinful, villainous, vicious, immoral. For example, her grandmother is so wicked that the only work she knows is to put fuel in the fire. उसकी जो दादी हैं वो इतनी बुरी हैं कि उनका एक ही काम है कि उन्हें आग में घी डालना आता है। और जो फ्यूल इन द फायर है वो इडियम है जिसे आप अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी बोरिंग, और जो वोकैबुलरी है वेरी बोरिंग की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो वो है डल, मोनोटनस, टीडियस, अनइंटरेस्टिंग, ड्राई, व्योरीसम। आपके कुछ क्यू कार्ड्स थे, एक्सप्लेन द इवेंट इन विच you don't like the music played, the conversation you were not interesting, उस जगह पर आप जो है इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। For example, the conversation was very dry, I was uninterested in that conversation, the music which was being played was monotonous, I just wanted to go back home. The next word is very careful, and the synonyms for very careful are cautious, attentive, alert, heedful, very. She is cautious towards her medication because she don't want to take risk with her health. The next word is very colorful, and the synonyms are vibrant, glowing, eye-catching, lively. No sooner did I entered into the party hall, I looked at the decoration which was eye-catching, which was vibrant. जैसे ही मैं पार्टी हॉल के अंदर एंट्री किया तो मैंने देखा डेकोरेशन की तरफ जो कि आँखों को मतलब खींचने वाली थी या बहुत कलरफुल थी, बहुत वाइब्रेंट थी। वेरी क्रिएटिव, एंड द सिनोनिम्स फॉर वेरी क्रिएटिव आर इनोवेटिव, आर्टिस्टिक। Ram is an innovative kind of person. He knows how to reuse the old things with एडिंग समथिंग न्यू टू इट। राम जो है वो बहुत ही इनोवेटिव पर्सन है, उसे पता पुरानी चीज़ों को किस तरीके से दोबारा कुछ ना कुछ नया ऐड करके यूज़ कैसे करना है। ये जो था हमारा आज का लास्ट वोकैबुलरी वर्ड था। आई होप आपको ये जो है वर्ड्स जो हैं अच्छे लगे होंगे। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जिसको रट्टा मारने से याद नहीं होती है, वो तब याद होती है जब आप उनको एक एक दो दो वर्ड्स को अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो वो उस तरह से आपके अंदर रच जाती है कि जब आप बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर स्टक करेगी और आपको वो वर्ड याद आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको भी पता है कि आपकी वोकैबुलरी बेटर होगी और जिसकी वजह से बैंड्स स्कोर कर पाना आसान होगा। अगर आपको मेरी जो वीडियो है पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच।